Good morning, student. This is Srikant, and our class 9 history chapter first, the French Revolution, is continue. Students, previous lecture was introductory. Okay, and today we will discuss about the what was the main causes of French Revolution. Okay, and first is the economic causes. So we can say that depleting of depleting of the resources is the main causes of French Revolution. Okay, depleting resources help to growth of revolution. Okay, student, first of all, here we will study about the Louis 16. Okay, who was Louis 16? Okay, in 1774 Louis 16. And who was Louis 16? Many times question also, who was Louis 16? Louis 16 was the kings of France during the French Revolution. When he ascended the throne, वो गद्दी पर कब बैठा? And he ascended the throne in the 1774. Student, as you can see your NCERT book page number 4, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेटा दिया है about Louis 16. हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि उस समय राजा कौन था, who was the king, okay, what they did, उसने क्या किया, and how, okay, and he belonged, and Louis 16 ascended the throne. Okay, ascended the throne in the 1774, and he belonged to the Bourbon dynasty. Okay, Bourbon family. वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, किस डायनेस्टी का रूलर था? Bourbon dynasty. Okay, and the age of 20 years he married with Austrian princess Mary Antony. Okay, he married with Austrian princess Mary Antony. And यहाँ पर बेटा हीरो कौन है? इस पूरे जो है फिल्म का हीरो कौन है? लुइस 16. और हीरोइन कौन, एक्ट्रेस कौन है? मैरी एंटोनी. ओके, when the Louis 16 sit the throne, at that time the financial condition of France was not good. Okay, तो यानी कि फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी. एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, दूसरा जो इसका एज था बेटा 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स में गद्दी पर बैठ गया, बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं था कैसे राज चलाना है. ओके, एंड बोथ स्पाउस लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ. दूसरी ये जो है लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, बट दे लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ. ओके, and here Louis 16 was some liberals. Okay, and he helped to the 13 American colonies. Okay, as you can see your NCERT. Okay बेटा, पेज नंबर पैराग्राफ फर्स्ट. ओके, पैराग्राफ फर्स्ट में देख सकते हो आप लोग, चौथी लाइन. and he helped to the 13 American colonies. Okay, to gain their independence from Britain. यानी कि ब्रिटेन से आज़ादी के लिए जो अमेरिका लड़ रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो उसको जो है ये जो फ्रांस क्या करता है, ये अपने जो है मनी लेंडर्स, अपने कंट्रीज के जो लेंडर है उनसे लोन लेकर के ये जो है अमेरिका को हेल्प करता है. एंड यहाँ पर थोड़ा सा जो है वंडरिंग आप होगी, सरप्राइज्ड होगी. ओके, यानी कि एक दोस्त जब दूसरे दोस्त का हेल्प करना चाहिए जो है कठिन परिस्थितियों में, तो बाद में उसको भी स्थिति सही होने पर उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया. ओके, आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंट अमेरिका डिड नॉट पेड द लिब्रे. ओके, लिब्रे करेंसी मतलब टू द फ्रांस. ओके, मतलब यानी कि फ्रांस को करेंसी वो रिटर्न नहीं करता है जो कि करना चाहिए था. Okay student, and the war aided debt more than 2 billion livres. Okay, यानी कि युद्ध के जो है बेटा जो है उसके वार लोन के रूप में जो है कितना मतलब अमेरिका को जो हेल्प करने के लिए कितना लोन लिया गया था? अबाउट द 2 बिलियन livres. एंड हियर न्यू वर्ड इज कम फ्रॉम यू. आपके सामने बेटा एक नया वर्ड आया है, livre. ओके, व्हाट इज द livre? ओके,
Libre, student, libre was the currency of France during the that time. That time it means the 18th century. ओके 18th सेंचुरी में यानी कि बेटा जो फ्रांस का जो करेंसी था वो क्या था, लिब्रे, जस्ट लाइक आवर इंडियन करेंसी इज द रुपीस, and during the 18th century the French currency was a libre. And my question from Krishna, okay beta Krishna, yes beta tell me, and what was a libre? Libre क्या था? Okay, very nice student, excellent beta Krishna. And the libre was the currency of France during the 18th century. Students, high interest on the credit taken to the finance war and the last of maintaining, and there is also need a lot of finance to यहाँ पर बेटा ढेर सारा जो मतलब फाइनेंस की जरूरत है, ओके, टू मेंटेनिंग द आर्मी कोड एंड द गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर यानी कि इन सब चीज को आर्मी को मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग द आर्मी कोर्ट्स, मतलब जज वगैरह को खर्च एक्सपेंस देने के लिए, सैलरी देने के लिए, देयर आर नीड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंस, अ लॉट्स ऑफ लिवरे, एंड बट देयर ट्रेजरी वाज एम्प्टी। लेकिन ये जो राजा साहब है बेटा लुई 16 इनकी जो ट्रेजरी है एकदम बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, एम्प्टी है, खाली है। ओके, एंड सो द गवर्नमेंट्स, ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर forced to the kings, please increase the taxes to meet the expense, यानी कि खर्च निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और खर्च को इन लोगों को सैलरी देने के लिए आपको क्या करना है, प्लीज आप जो है टैक्सेस को बढ़ाइए। एंड बट हियर द किंग्स अलोन कैन नॉट इंक्रीज द टैक्सेस। ओके, क्यों? बिकॉज फ्रांस में बेटा क्या है, ओल्ड रेजिम है। ओल्ड रेजिम क्या, ओल्ड रेजिम का मतलब क्या हुआ, एक न्यू वर्ड ये भी बेटा, ओल्ड रेजिम मतलब द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर द 1789 का जो बेटा जो इंस्टीट्यूशन था उसको हम लोग ओल्ड रेजिम कहते थे। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, एंड ऑल ऑफ these we discussing next video, the French society. Okay student, this is all about of the depleting resources, economic causes of the French Revolution. यहाँ पर देख लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लुई 16 कौन है हम लोगों ने पढ़ा। ओके, वी डिस्कस अबाउट द हु वाज लुई 16, व्हाट वाज द लिब्रे, ओके, and how the France helped to the 13 American colonies. ओके, यहाँ पर ये भी देखा कि after getting independent, America did not pay the libre, ओके, उसको पेड नहीं किया। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी।